Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome again. Welcome to new lecture of the alcohol, phenol, and ether. In our previous lecture, we have learned about some basic things about alcohol, phenol, and ether, structure, common molecular formula, etc. Then we have talked about IUPAC nomenclature, which is actually a part of your 11th portion. IUPAC nomenclature को दोस्तों फर्दर देखने के लिए हमको दो काम करने होंगे. यू कैन सी द वीडियो ऑफ 11 साइंस ऑल्सो. वहाँ पे आपको अल्कोहल फिनोल ईथर एज वेल एज other component like alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, etc. हेलो alkane, हेलो एरिन, इन सभी पोर्शन के वीडियो लेक्चर्स आपको 11 की लिंक में से मिल जाएंगे. यू कैन रिवाइज इट. मोर ओवर हम उसको दोस्तों एक और बार रिवाइज करेंगे इन दी जूम सेशन. ओके, सो IUPAC के लिए यू हैव टू यूज 11th वीडियो एज वेल एज जूम सेशन. ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. There are some question regarding IUPAC nomenclature. So IUPAC nomenclature के जो questions है 11.1 index question, 11.2 ये सभी हम जूम सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है. Then after the IUPAC nomenclature of the alcohol, phenol and ether, उसके बाद दोस्तों हमको क्या देखना है, we have to learn about structure of the this reactive functional group. यहाँ पे दोनों की बात करनी है, किसकी, फिनॉल की as well as alcohol as well as ether. So इन तीनों का स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है. What is the similarity? तीनों का स्ट्रक्चर में जो सिमिलैरिटी है that we are going to learn. So structure of alcohol, phenol and the ether. What is the similarity? Similarity is depend upon the structure of the H2O. You can see H2O का structure क्या आप सबको मालूम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द H2O. यहाँ पे दोस्तों two lone pair of the oxygen is there. This is actual H2O. If we replace one hydrogen of the H2O, one hydrogen of the H2O from the aliphatic or any other carbon chain like alkane, alkene or alkyne, majority case में alkane हम लिखेंगे. Then this become ROH, which is alcohol. If this R is equal to CH3 methane, then structure should be like this. Okay, so here bond angle. So actual में दोस्तों हमको मिलने वाला था H2O में उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, 108.9, 108.9. ठीक है. And the bond length between carbon and oxygen is near about 142 picometer. Bond length between oxygen and hydrogen, which is somehow lower, that is 96 picometer. Structure of the carbon here sp3, hybridization of the carbon is sp3 as well as oxygen sp3, because H2O में भी आप सबको मालूम है इसका hybridization sp3 है. Then similar, if we replace this aliphatic chain or carbon chain of the alkane, alkene or alkyne via aromatic ring, in that case we will get something like this. So hydrogen is there as it is. यहाँ पे again carbon, but this time carbon is from the aromatic chain. Okay, this is from the aromatic chain. So फिर से structure of the H2O, structure of the alcohol, structure of the phenol somehow similar. बट यहाँ पे दोस्तों जो बॉन्ड एंगल है, दैट बॉन्ड एंगल शुड बी इंक्रीज. इससे इंक्रीज होगा 108.9 से ऑलमोस्ट 0.2 डिजिट इंक्रीज होके कितना मिलेगा, 109. 109, दैट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ द फिनॉल, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. हियर hybridization of the carbon is sp2. oxygen का as it is रहेगा, but hybridization of the carbon is sp2. you can see bond length यहाँ पे 142 थी, यहाँ पे 141 होगी. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों में इक्वल होनी चाहिए. 141 क्यों हो गई फ्रॉम दी 142? ये 142 डिक्रीज होके 141 हो चुके बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन. यू कैन सी हियर hybridization is sp2 as well as resonance is also there. Yellow alkane, yellow arene में substitute nucleophilic reaction क्यों
इजीली नहीं हो पा रही है, वो सब हमने पढ़ा था दोस्तों, तभी हमको मालूम है दिस कार्बन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड is short or we can say is lower in comparison to aliphatic carbon reactive functional group bond. वहां पे हमने बात की थी हेलो कंपाउंड की, यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। ओके, सो ये हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नाउ इफ यू रिप्लेस बोथ हाइड्रोजन ऑफ द H2O, both hydrogen from the H2O from the carbon chain, then we will get ROR, or if aromatic chain is there then AROR, दोनों पॉसिबिलिटी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर ग्रुप। सपोज हियर CH3 OCH3। सो हियर दोस्तों बॉन्ड लेंथ इज समहाउ सिमिलर, ये इतना बड़ा गैप नहीं है 141 142, बट यस 141 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ इज देयर, बट बॉन्ड एंगल समहाउ बिगर। दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ये वैल्यू दोस्तों आपको याद रखनी है, मे बी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल, स्ट्रक्चर ऑफ द ईथर फ्रॉम द H2O। H2O को दोस्तों याद रखते हुए हम इजीली इसको समझ सकते हैं, वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर द MCQ पोर्शन। आई होप आप सबको ये पता चला होगा। देन अभी दोस्तों अल्कोहल के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, वी आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन और मेकिंग ऑफ द अल्कोहल। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे दोस्तों हमने हेलो अल्केन हेलो एरिन में प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, तब वहां पे हमने पर्टिकुलर उसके रिसोर्स ग्रुप या फिर रिसोर्स रिएजेंट पहले डिसाइड किए थे, कौन से रिएक्टेंट से हमको हेलो अल्केन बनाना था। सिमिलर, if you want to make alcohol then we have to decide some reactants, some resource जहाँ से हमको अल्कोहल बनाना है। सो फर्स्ट इज फ्रॉम द alkene, मेकिंग ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द alkenes। सो अल्कीन से किस तरह से हम ये अल्कोहल बना सकते हैं। सो पहले दोस्तों सपोज दिस इज आवर alkene, this is alkene, carbon dual bond carbon sp2 hybridization, so we can say this is alkene। we react this alkene with H2O, somehow दोस्तों H2O से react करवाते हैं। you can see H2O becomes H plus OH minus, H2O should becomes H plus and OH minus or HOH। suppose H is attached with this carbon, OH with attached with this carbon, so bond of breaking of pi bond is there, so we will get something like this, here hydrogen and here hydroxyl group। so this is our actually alcohol, not ethanol, this is our alcohol। मैं इथेनॉल दोस्तों इसलिए यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन हो देन इथेनॉल, इफ अनदर कार्बन चेन इज देयर देन अल्कोहल। सो यहाँ पे दोस्तों हमको ये सिंपल बात पता चली अल्केन टू अल्कोहल। बट जैसे हेलो अल्केन में दोस्तों सिमेट्रिकल था तब कोई दिक्कत नहीं थी। इफ दिस अल्केन इज सिमेट्रिकल देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोजन, अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद एनी कार्बन डजंट मैटर, यू विल गेट सिमिलर प्रोडक्ट। बट इफ asymmetrical alkene is there then we have to clarify that hydrogen and hydroxyl group will attach with the simultaneously किस कार्बन से अटैच हो रहा है, that is important। on that basis we have to decide our product। so alkene to alcohol similar, alkene to alcohol similar, but हमको पहले ये पता करना पड़ेगा अगर एसिमेट्रिकल अल्केन रहा तब क्या हो सकता है। ओके, सो दोस्तों वही पॉइंट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो एज वी डिस्कस्ड अभी हमको क्या करना है, मेकिंग ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, बट व्हाट इफ एसिमेट्रिकल अल्कीन्स इज देयर। सो दोस्तों हमारे पास दो डिफरेंट मिलेंगे मेकिंग ऑफ दी अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, उसके लिए दो अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज बाय acid catalyze hydration। so hydration is there, there is no doubt, we have to add H2O, hydrate particle H2O add करना है, that is hydration। अल्टीमेटली दोस्तों इसको आपको याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज डायरेक्ट हाइड्रेशन।
मैं आपको दोस्तों बाद में बताऊंगा व्हाट इज डायरेक्ट हाइड्रेशन, व्हाट इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन. In the first method, by acid catalyzed hydration, that is also known as a direct hydration. Why direct hydration? ये भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे. ओके, और यहाँ पे हम वही रूल यूज करेंगे जो आपने 11th में एल्किन की रिएक्शन में यूज किए थे, मार्कोनिकोव एंड दी एंटी मार्कोनिकोव. ओके, मार्कोनिकोव एज वेल एज एंटी मार्कोनिकोव, वही रूल को दोस्तों यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. सपोज बेसिक रिएक्शन क्या होगी, सी ड्यूल बॉन्ड से इट मींस एल्किन plus H2O, this hydrogen, this hydrate particle H2O we are going to add. This H plus indicate in presence of acid catalyst. So we will get final product something like this. यहाँ पे दोस्तों pi bond break हो जाएगा, which already know pi bond is somehow weak, और यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐड होगा. बट यहाँ पे कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, कौन से कार्बन पे ऑक्सीजन होगा, दैट इज प्री डिसाइडेड. किस तरह से दोस्तों, एक एसिमेट्रिकल अल्कीन में हम एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज दिस इज प्रोपिन, CH3CH ड्यूल बॉन्ड CH2. इफ दिस इज इथीन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, देन नॉट टू वरी, यू कैन ऐड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल विद एनी कार्बन, देयर इज नो डिफरेंट, योर प्रोडक्ट इज इथेनॉल. बट इन दिस केस योर प्रोडक्ट शुड बी propane 1 ol or propane 2 ol. So क्या होगा दोस्तों, let us see. In presence of H plus acid catalyst, this reactions is as per as Markovnikov rule. Okay, just remember what was the Markovnikov rule. हमने दोस्तों Markovnikov rule में ये पढ़ा था that hydroxyl or major electronegative group will attach with the कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है. हियर यू कैन सी विद दिस कार्बन, यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, बट ड्यूल बॉन्ड के ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है. सो एज पर एज रूल हाइड्रोक्सिल कहाँ पे अटैच होगा, इस कार्बन. सो योर मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, CH3CHOH CH3. सो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट. ये दोस्तों हमारी होगी मेजर प्रोडक्ट एज वेल एज पर एज मार्कोनिकोव. साथ में दोस्तों कुछ क्वांटिटी हमको इस तरह की भी मिल सकती है, दैट इज CH3CH2CH2OH. दिस इज आवर माइनर प्रोडक्ट. यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, और फोकस इज इन दी मेजर प्रोडक्ट. दिस इज आवर फोकस. सो चलो ये तो पता चला बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन और कैटालाइज हाइड्रेशन. एज पर एज मार्कोनिकोव रूल जो प्रोडक्ट मिलने वाली है, दैट प्रोडक्ट इज एज पर एज Markovnikov rule. But the thing is एक्चुअल में ये किस तरह से वर्क करता है. एक्चुअली हम एसिड इस रिएक्शन को मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बट एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, फॉर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट मैकेनिज्म. एक्चुअल में दोस्तों मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में अभी तक राइटिंग में SN टू SN1 से ज्यादा किसी की मैकेनिज्म पूछी नहीं है. बट यस, अगर आपको मैकेनिज्म पता है देन यू कैन solve any question regarding making of alcohol from alkene, you can solve it. आप easily solve कर सकते हो. So mechanism पे दोस्तों focus होना चाहिए. This mechanism is processed in the 3 steps. दोस्तों यहाँ पे total 3 steps है. So step by step दोस्तों हम देखने जा रहे हैं what is being done over here. So we are starting from the step 1. What is step 1? Step 1 में क्या होगा दोस्तों, in this step 1, I repeat, in this step 1 we will get carbocation. Suppose if this is our H2O which we are going to add in the alkane, and this is H plus which is our catalyst. So H2O plus H plus यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेट होके हाइड्रेशन आयन बन सकता है, दैट इज कॉमन. सॉरी अभी यहाँ पे प्लस हो जाएगा H3O plus. So this is our hydrate ion, sorry हाइड्रोनियम आयन, नॉट हाइड्रेट, हाइड्रोनियम आयन. नाउ यहाँ पे दोस्तों किस तरह से कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है, यू कैन सी दिस इज अल्किन. यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में H प्लस आने वाला है जिसको लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, बट ये H प्लस एक्चुअली किस तरह से आएगा, H प्लस डायरेक्टली अगर नहीं आ सकता तो उसके पास दोस्तों एक ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज, मैं आपके सामने ऑप्शन रखने जा रहा हूँ, इसी तरह से आएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस. थोड़ी देर में ये ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन रिटर्न ले लेगा जो अभी डोनेट किए.
So this hydrogen become H plus. That hydrogen will get electron from the pi bond, ये pi bond break होने के बाद. But दोस्तों क्या होगा, एक्चुअल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं that pi bond break and electron goes to the hydrogen. But एक्चुअल में हम प्राइवेटली ये सोच सकते हैं पहले क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है पाई बॉन्ड, सो दोनों में से किसी एक कार्बन ने, आई रिपीट, दोनों में से किसी एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए. सपोज ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इट मींस क्या बना हुआ, this becomes carbon ion and this become carbocation. Okay, this is being done. उसके बाद दोस्तों H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव साइन बिकॉज ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, सो वी डोंट हैव टू इंडिकेट एनी साइन ओवर देयर, वहां पे कोई दोस्तों सिंबल देना नहीं है. सो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एंड दिस बिकम C प्लस. सो डायरेक्टली दोस्तों यही स्टेप डायरेक्ट लिखा है. सो डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा कुछ इस तरह से. ये हाइड्रोजन आ चुका है विच इज फ्रॉम दी H प्लस. देन अगेन कार्बन, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या है, यू कैन सी उसके पास ये दो वैलेंसी और दिस बिकम प्लस. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. we will get carbocation over here and H2O जो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है. This is our first step. Second step is attack of nucleophile. Attack of nucleophile किस तरह से दोस्तों वर्क करता है. So step 2 attack of the nucleophile. बट यहाँ पे दोस्तों कौन है जो ऐसे nucleophile वर्क कर रहा है, weak nucleophile. और किसको आप weak nucleophile कहते हो आपको मालूम है, that is H2O. H2O दोस्तों यहाँ पे अटैक करेगा and we will get protonated alcohol. Protonated alcohol किस तरह से, you can see suppose this is carbon with hydrogen, this is carbon plus, उसके साथ एक्चुअली कार्बोकेटाइन और उसके साथ यहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिल रहा है, H2O. H2O ऑक्सीजन. Okay, this oxygen will donate the electron towards the carbon and work as a carbocation and we will get product something like this. You can see here hydrogen, here oxygen with hydrogen and hydrogen, plus sign is there because of donating the electron. और इसके साथ दोस्तों इसकी दो वैलेंसी थी, so it become protonated alcohol. So in the second step we will get protonated alcohol. In this step 3 और last step, वहां पे क्या होगा, step 3 में removal of the proton is there. So we can okay, so removal of proton. You can see जो दोस्तों सेकंड स्टेप में हमको प्रोडक्ट मिली थी वो प्रोडक्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल, दिस इज एक्चुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एक्स्ट्रा प्रोटॉन, सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल. इन द लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन और रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन. सो इस स्टेप को दोस्तों आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस स्टेप इज नॉन एज अ डीप्रोटोनेशन. सो दिस इज एक्चुअल आवर डीप्रोटोनेशन. इन द डीप्रोटोनेशन दिस प्रोटॉन विल रिमूव एज अ H प्लस. दोस्तों ये प्रोटॉन रिमूव होगा बट एज अ H प्लस. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, विद द ऑक्सीजन. सो H प्लस रिमूव होगा, दिस इज H प्लस जो एक्चुअली हमने कैटलिस्ट से एक्सेप्ट किया था. सो एज वी नो कैटलिस्ट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द रिएक्शन. ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं हो सकता, सॉरी रिएक्शन का पार्ट हो सकता है, बट एट द एंड वी विल गेट एज इट इज, जिस तरह का था उसी तरह का हमको वापस मिल सकता है. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट H कार्बन OH. ओके, सो दिस इज अल्कोहल. अभी दोस्तों यहाँ पे कैसे पता चला ये एंटी मार्कोनिकोप है, ये एंटी मार्कोनिकोप है पता चला बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप, यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टेप formation of the carbocation is there and we know primary cation and secondary cation, अगर इन दोनों की आप कंपैरिजन करोगे secondary cation is more stable. If we talking about secondary and tertiary cation, you know that tertiary cation is more stable. So दोस्तों ये रिएक्शन अभी फिर से आपके सामने रख रहा हूँ जो हमने पहले बात की थी, CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH2. अगर दोस्तों यहाँ पे केटाइन जनरेट होता है, इट मीन्स दिस इज प्राइमरी केटाइन. और सेकंड पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे जनरेट होता है इन दिस सेकंड नंबर कार्बन, सो दिस इज सेकेंडरी, ये प्राइमरी था सॉरी.
प्राइमरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज समथिंग लाइक दिस. So as per as Markovnikov rule, we will get product like this. So this is all about acid catalyzed hydration. Second दोस्तों reaction from this alkene, that is hydroboration oxidation. Similar reaction, addition of the H2O, but this time indirect H2O, indirect hydration. In the both reaction product should be differ. यहाँ पे दोस्तों एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा. सो सेकंड मेकिंग विच इज नोन एज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. सो लेट अस सी दोस्तों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा. वी हैव टू यूज डाइबोरेन. ये डाइबोरेन क्या है दोस्तों, ऑलरेडी आपने पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है. दिस इज डाइबोरेन, BH3 twice, that is diboren. From the diboren actually we are going to use only boron, BH3 को ही दोस्तों हम यूज करने वाले हैं. और यहाँ पे एज पर एज एंटी मार्कोनिकोव रूल दोस्तों प्रोडक्ट अलग होगी. आई मीन टू से सपोज यही प्रोपिन है हमारे पास, CH3CH dual bond CH2. If we doing this reaction hydroboration oxidation, so यहाँ पे जिस तरह से हाइड्रेशन हुआ और सेकेंडरी अल्कोहल हमारी मेन प्रोडक्ट हुई, सिमिलर केस यहाँ पे भी हाइड्रेशन होगा, बट अवर मेजर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस, CH3CH2CH2OH. दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट विच इज प्राइमरी अल्कोहल. और जैसे दोस्तों अपने एग्जैक्ट एल्किन की हाइड्रोएलोजेनिक एसिड रिएक्शन के साथ किया था, वही यहाँ पे होगा. अगर टर्सरी की पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी ज्यादा मिलेगा एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन में, और सेकेंडरी की कंपैरिजन में टर्सरी ज्यादा मिलेगा. सिमिलर यहाँ पे भी टर्सरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी ज्यादा और सेकेंडरी की कंपैरिजन में प्राइमरी ज्यादा. तो प्राइमरी यहाँ पे हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी. ओके, सो यहाँ पे भी दोस्तों हमको पूरी मैकेनिज्म देखनी होगी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की, सो दैट हमको ये दोनों रिएक्शन का एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पता चले. हियर आल्सो वी आर गोइंग टू ऐड H2O हाइड्रेट पार्टिकल, बट दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्ट हाइड्रोजन. वहां पे दोस्तों हमने डायरेक्ट रिएक्शन की थी. किससे डायरेक्ट रिएक्शन की थी? वहां पे डायरेक्ट रिएक्शन हुई थी विद दी H2O. यहाँ पे रिएक्शन होगी विद दी H2O बट इनडायरेक्ट. सो लेट अस लर्न विद दी मैकेनिज्म. दोस्तों मैकेनिज्म के साथ अगर देखना है तो किस तरह से हो सकता है. ओके, सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक्चुअल में पहले रिएक्शन लिख दूं. एक्चुअल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी. 3 मोल ऑफ CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH2, इट मींस प्रोपिन. उसकी रिएक्शन करनी है बोरेन से, देन इसका करना है ऑक्सीडेशन, एंड वी विल गेट CH3 CH2 CH2OH एज अ मेन प्रोडक्ट, 3 मोल ऑफ अल्कोहल. ओके, लेट अस सी एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरह से वर्क करती है. ओके फ्रेंड्स, एज वी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म दोस्तों समहाउ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया. एकदम इजी है अगर आप यहाँ पे अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट रखते हो. ओके, और वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन ही लिखनी होगी इन दी एग्जाम. आपको पूरी मैकेनिज्म शो नहीं करनी है, बट किस तरह से हो सकती है उसके लिए मैकेनिज्म देखनी है. सपोज फ्रॉम दी 3 मोल दोस्तों हम एक CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं? BH3 से. ये BH3 मीन्स बोरोन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. एज वी नो यहाँ पे दोस्तों एंटी मार्कोनिकोव रूल होगा. सो सेंट्रल आयन जो बोरोन है, बोरोन यहाँ पे जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ, जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास अटैच होने के बजाय कहाँ पे अटैच होगा? जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है. सो हाइड्रोजन का अटैचमेंट कहाँ पे होगा? विद दिस कार्बन. और बोरोन का कहाँ पे होगा? विद दिस कार्बन. सो आवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, CH3, this CH becomes CH2, no pi bond, only sigma bond, again CH2 with B. बोरोन के पास दोस्तों क्या है? O और 2 हाइड्रोजन है. ओके, ये प्रोडक्ट मिली. देन रिएक्शन विथ 1 मोर प्रोपिन, एक और प्रोपिन दोस्तों आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH2. अगेन फिर से यहाँ पे क्या होगा? लेट अस सी. यहाँ पे दोस्तों ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा? विद दिस कार्बन बोरोन.
with higher hydrogen carbon. So our product should be like this. दोस्तों यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरह से होगी, CH3 CH2 CH2, देन बोरोन, बोरोन के पास फिर से दोस्तों CH2 CH2 CH3. What is being done if we react with third propane? this यहाँ पे उसके पास एक हाइड्रोजन. If we react with third propane, CH2 dual bond CH CH3, then our product should be like this. You can see here pi bond will break, this hydrogen will attach with this carbon and first carbon attach with boron. Then our final product is something like this: CH3 CH2 CH2 boron, CH2 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 3, then CH2 CH2 CH3. Actually this is trialkyl boron, और यहाँ पे दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन. अब चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 3 times, CH3 CH2 CH2 3 times, 1 2 and 3 with boron. So this is actually trialkyl boron. अभी दोस्तों trialkyl boron के साथ हमको आगे क्या करना है? इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमको वहां पे दोस्तों उसका ऑक्सीडेशन करना है. किस तरह से होगा? यू कैन सी, सपोज ये बोरोन है, विद दी बोरोन हियर CH3 CH2 CH2, here also CH3 CH2 CH2, here also CH2 CH2 CH3. अभी दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, दिस मैकेनिज्म इज नॉट यूजफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम. आपको राइटिंग में नहीं पूछी जा सकती, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको एमसीक्यू अगर सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा इफ यू आर अवेयर फ्रॉम दिस मैकेनिज्म. अभी दोस्तों यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंट में हम यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन सोच रहे, देन क्या होगा? सपोज H2O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, if this bond will break, so hydrogen will remove as H plus, oxygen become minus. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OOH is actually H2O2 से दोस्तों अलग हुआ एक आयन ही है, पेरोक्साइड है. सो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या दोस्तों? ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ये बॉन्ड ब्रेक होने के साथ, आई रिपीट, विद द रिमूवल ऑफ दिस बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो सकता है एक्स्ट्रा? यहाँ पे क्या पॉसिबल है? अगर दोस्तों ये बॉन्ड ब्रेक होता है, आई रिपीट, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, देन बोरोन के साथ यहाँ पे बोरोन के साथ क्या अटैच हो सकता है? अगर ये 3 टाइम करूँ, आई एम रिएक्टिंग विद पेरोक्साइड एंड 3 टाइम, सो ये तीनों के साथ सिमिलर हो सकता है, सिमिलर रिएक्शन होगी, बट कितनी बार होगी? 3 टाइम्स होगी. उसके बाद दोस्तों में ये 3 टाइम्स करने के बाद, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बीच में ये हमारा पेरोक्साइड आयन अटैच होने के बाद, उसके बाद दोस्तों सपोज इसका हाइड्रेशन हो, सो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों? फाइनली प्रोडक्ट ये होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH3 CH2 CH2 ये होगा प्लस, उसके साथ ये आएगा OH माइनस. सो योर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 OH. कितनी बार है? 3 टाइम्स. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2 OH. बोरोन के साथ क्या बचेगा? ओनली ऑक्सीजन. सो O minus O minus O minus, दिस इज एक्चुअली बोरेट आयन, BO3 minus 3. BO3 minus 3 is actually बोरेट आयन. ये दोस्तों बोरेट आयन बनेगा. क्लियर? अभी ये सपोज OH की जगह पे आप यहाँ पे फुल हाइड्रेशन करते हो, इट मीन्स ये बोरेट आयन में O माइनस के साथ अगर हम H को भी इंडिकेट कर दे, सपोज H इज देयर H इज देयर H इज देयर, देन इन प्लेस ऑफ बोरेट आयन यू विल गेट बोरिक एसिड H3BO3 एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है. सो ये दोस्तों एज पर एज एंटी मार्कोनिकोव रूल मिलने वाली रिएक्शन थी. यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से है, और आगे हमने बात की थी इन दी एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, वहां पे मेन प्रोडक्ट में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा था. ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक होनी चाहिए नहीं. अभी दोस्तों यहाँ पे भी जो यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचे उसकी भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म है.
किस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किस तरह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, ये सब भी है। बट इन दी प्रीवियस सिलेबस इसकी नीड थी। अभी दोस्तों अभी के सिलेबस में नीड नहीं है। अभी के सिलेबस में आपको इतना ही पता चलना चाहिए दैट बोरोन के साथ ऑक्सीजन आएगा और CH3CH2CH2OH बनेगा। दिस इज योर नीड, सो दैट मैंने आपको वहीं तक बताया है। ओके, ये मैकेनिज्म थी। अगर सर हमको एग्जाम में लिखना है इन दी राइटिंग एग्जाम, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? यही इक्वेशन दोस्तों अगर आपके एग्जाम में है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH2 with the BH3 boron। पहला स्टेप ये होगा आपका। Then you have to write CH3CH2CH2 thrice with B। ये स्टेप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने किया था। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको जस्ट सिंपल इतना ही लिख देना है, आपको इतना ही लिख देना है H2O2 H2O OH minus and your final product is CH3 CH2 CH2 OH 3 times। ओके, जस्ट दोस्तों आपको इतना ही लिखना है अगर ये आपकी राइटिंग एग्जाम का पोर्शन है। ठीक है, सो दिस इज मेकिंग ऑफ द alcohol from the alkene with the hydroboration oxidation। Here you can see again in the alkene addition of H2O is there, but this time indirect। यहाँ पे दोस्तों हमने डायरेक्टली कहीं पे H2O की रिएक्शन नहीं की है। ठीक है, सो ये दोनों रिएक्शन आपको ठीक से पता होनी चाहिए। ओके, सो फाइनली आई हैव वन क्वेश्चन, आपको खुद से दोस्तों इसका आंसर देना है। सपोज CH3CH2CH ड्यूअल बॉन्ड CH2 is there। I have two different reaction, H plus oblique H2 which is actually acid catalyzed hydration, and one more reaction which is hydroboration oxidation। सो दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगी आपको खुद से डिसाइड करना है। दैट इज इन योर होमवर्क। आप दोस्तों इजीली कर पाओगे अगर आपने पहले की रिएक्शन ठीक से देखी हो तो। ठीक है, देन वन मोर मेकिंग ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? मेकिंग और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेकिंग और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोस्तों किस तरह से हो सकती है, लेट अस सी। उसके लिए आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद करना पड़ेगा और आपको जो मैकेनिज्म बनानी है दैट इज फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन, जहां से अल्कोहल बनाना है विच इज एल्डिहाइड और कीटोन। ये दोस्तों एल्डिहाइड या फिर कीटोन से अल्कोहल बनाने में काम आएगा। सो C dual bond, it means this is carbonyl carbon। If 2 times of carbon chain is there then it is ketone। If 1 time hydrogen and 1 time carbon chain then it is aldehyde। If both hydrogen is there then it is also aldehyde, but this time this is formaldehyde or methanol। और यहाँ पे दोस्तों बनानी रिएक्शन में हमको यूज क्या करना है, वी हैव टू यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो वी हैव टू रिमेंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रमाबेन मगन भाई जेरोक्स वाला RMgX। सो लेट अस सी किस तरह से यहाँ पे मेकिंग हो सकती है। ओके, ये मैकेनिज्म में दोस्तों आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं। इफ यू हैव फॉर्माल्डिहाइड with the Grignard reagent, formaldehyde with Grignard reagent, you will get 1 degree alcohol। If you have any other aldehyde other than formaldehyde, I repeat other than formaldehyde, with Grignard reagent you will get secondary alcohol, you will get secondary alcohol। If you have ketone with the Grignard reagent, ketone with the Grignard reagent, you will get 3 degree alcohol। Okay, so ये याद रखना होगा, मैकेनिज्म विल कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे मैकेनिज्म कॉमन होगी। ओनली द डिफरेंट इज इन प्रोडक्ट। If your reactant is formaldehyde or other aldehyde or ketone, in term you will get primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol। but किस तरह से हो सकता है, let us see। दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपोज ये रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगी, ये मैकेनिज्म के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आपने मैकेनिज्म समझ ली, आपका बहुत सारा काम यहीं पे हो जाएगा। सपोज दिस इज आवर C ड्यूल बॉन्ड O
और यहाँ पे है RMgX। मेजोरिटी हियर X इज Br और Cl, क्लोरो और ब्रोमो यहाँ पे दोस्तों ज्यादा सुटेबल होगा। ये रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगी दोस्तों, आपको पता है R इज नथिंग बट द एक्चुअली कार्बन चेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजोरिटी केस में कार्बन के साथ अगर और कोई कंपाउंड है अदर देन हाइड्रोजन, आई मीन टू से हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी है, तो कार्बन को दोस्तों ऑलवेज पॉजिटिव मतलब पार्शियली पॉजिटिव ही बनना था बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इन दी पर्टिकुलर ग्रिग्नर रिएजेंट मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, फ्रॉम द कार्बन चेन। सो दिस कार्बन चेन और फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस कार्बन चेन शुड बिकम पार्शियली नेगेटिव, दिस बिकम पार्शियली पॉजिटिव। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कार्बन के साथ। Similar case here you can see in the carbon oxygen, if this bond will be break, ये break हुआ, then electron should come to the oxygen, this carbon become positive. So in short मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ Mgx and R minus Mg plus, अगर ये bond break हुआ, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ O minus 1 2 3 4 5 6, ये माइनस साइन होगी और ये बनेगा प्लस। तो दोस्तों ये R ये कार्बन के साथ बैक साइड अटैक करके अटैच हो सकता है। अगर ये अटैक हुआ तो Mg को इलेक्ट्रॉन कम पड़े, वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। सो यहाँ पे हमको जो मीडिएटर प्रोडक्ट मिलेगी विच इज एक्चुअली नॉट स्टेबल, अनस्टेबल प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरह से होगी दोस्तों। ये दिस इज R, देन कार्बन, ओके दिस इज कार्बन। उसके साथ दोस्तों क्या है, दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। उसके साथ ये क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, Mg को। सो OMgX, दिस इज आवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। माइल्ड हाइड्रेशन दोस्तों, यहाँ पे हम जस्ट माइल्ड हाइड्रेशन करते हैं तो भी यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। किस तरह से, H2O में से दोस्तों H plus OH minus, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। If this bond will drop, a bond will break, again electron comes to the oxygen. This time this oxygen is ready to donate electron this proton. अगर वो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तब प्रोडक्ट क्या होगी, RCOH। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे क्या बना, Mg, Mg के साथ X। आपको पता है Mg plus 2 X minus 1। सो यहाँ पे Mg plus 2 साथ में -2 करने के लिए ये OH माइनस चला जाएगा, MgOH माइनस। दिस इज एक्चुअल मैकेनिज्म। दोस्तों अगर यहाँ पे ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, यू कैन सी दिस बोथ आर हाइड्रोजन, सो एक्चुअली दिस इज फॉर्माल्डिहाइड। ये क्या बना, फॉर्माल्डिहाइड बना। इन दैट केस यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, एंड आवर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, RCH2OH, RCH2OH। सो प्राइमरी 1 degree अल्कोहल, this is 1 degree alcohol. But if other than formaldehyde, formaldehyde के अलावा दोस्तों और कोई हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल फॉर्माल्डिहाइड के अलावा और कोई भी हाइड्रोजन है, तब क्या होगा, दिस इज R डैश, RCHO। फॉर्माल्डिहाइड की जगह पे क्या है, RCHO मींस aldehyde। सो यहाँ पे क्या रहेगा, R डैश, और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगी, R डैश। सो R कार्बन हाइड्रोक्सिल R डैश। सो दिस इज नॉट 1 degree, दिस इज एक्चुअली 2 degree अल्कोहल। If ketone is there, कैसे पता चलेगा कीटोन, in the place of hydrogen carbon chain is there, so in the place of hydrogen if R double dash another carbon chain RCOR, RCOR is actually ketone। ये क्या है दोस्तों, कीटोन है। so यहाँ पे क्या रहेगा, R double dash, your final product should be like this, this is actually 3 degree alcohol। so as we discussed, कॉमन मैकेनिज्म फॉर दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ओके, आपको याद क्या रखना है, जो मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया, इफ यू आर यूजिंग फॉर्माल्डिहाइड देन योर फाइनल प्रोडक्ट इज 1 degree अल्कोहल। इफ यू आर यूजिंग अदर देन फॉर्माल्डिहाइड और कोई एल्डिहाइड ले रहे हो देन सेकेंडरी अल्कोहल। इफ कीटोन इज देयर देन 3rd degree अल्कोहल। ओके, लेट अस गो फॉर द एग्जांपल। दोस्तों एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज CH3CH2MgBr, ethyl magnesium bromide, I mean to say Grignard reagent with HCHO। so आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकती है, दिस इज योर R, CH3CH2
ये दूसरा कार्बन है, सो CH2OH, और यहाँ पे क्या निकलेगा, MgOH, Br। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। एक्चुअली ये है प्रोपेनॉल बिकॉज ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। सिमिलर यही ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ अगर दोस्तों और कोई एल्डिहाइड है, आई मीन टू से दिस इज CH3CH2MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ CH3CHO, इथेनॉल, देन ये दोस्तों CH3CH2 यहाँ पे जुड़ेगा। सो आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी, CH3CH2 एज इट इज, ये कार्बन, उसके साथ और क्या है, CH3, ओके, CH3, एक हाइड्रोजन और एक OH। सो एक्चुअली क्या बना, 1 2 3 4, दिस इज योर ब्यूटेन टू ऑल। What if ketone? You can see. Suppose again CH3, CH2, MgBr with CH3, CO, CH3, क्या होगा, ये यहाँ पे अटैच होगा। सो CH3, CH2C, उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप है, ओके, 1 and 2, और दिस ऑक्सीजन बिकम हाइड्रोक्सिल। सो क्या होगा, 1 2, ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सिंपल है। सो दोस्तों मेकिंग ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द अल्केन, दोनों रिएक्शन हमने ठीक से पढ़ी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन एंड द हाइड्रोकोलेशन ऑक्सीडेशन, देन रिएक्शन विद द ग्रिग्नर रिएजेंट, ये दोनों दोस्तों हमने ठीक से पढ़ी। आपको यही रिएक्शन एकदम ठीक से फ्रॉम द एनसीईआरटी रिवाइज करना है, मैक्सिमम एग्जांपल्स देखने हैं, और आगे के लेक्चर में दोस्तों हम अनदर मेकिंग ऑफ द अल्किन, सॉरी अनदर मेकिंग ऑफ द अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन घर पे रहना है, सेफ रहना है, पढ़ते भी रहना है, ठीक है।